एक गुड एजुकेशन इंस्टीट्यूट की पहचान ही होती है कि वो अच्छी स्कॉलरशिप्स कैसे रन कर रहा है। आपकी टोटल फीस को मंथली फीस में कन्वर्ट कर देते हैं। फाइनेंस की जब भी पहली क्लास लोगे ना, दिस इज द फर्स्ट कंसेप्ट विच इज टॉट टू यू, विच इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अगर आपने 2.5 लाख रुपए की फीस इन्वेस्ट करी पर आपका प्लेसमेंट नहीं लगा, दैट इज अ जीरो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। I am very thrilled to introduce Mr. Arpit, who is an IIM Kozhikode alumnus. So, can you shed some light on how students can balance quality education with affordability? In that spirit, I think there are two ways, largely, I will break it down into two parts, in which you can make your dream education affordable for you, right? After these two things, I will give you a thumb rule also in which you should look at all of these things. First, let's focus on the first two things, how to make it affordable, right? पहला is first and foremost is scholarships. कोई भी अच्छा एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो भी आप सर्च कर रहे हैं, जिस भी डिग्री प्रोग्राम के लिए आप एडमिशन लेना चाहते हैं, एक गुड एजुकेशन इंस्टीट्यूट की पहचान ही होती है कि वो अच्छी स्कॉलरशिप्स कैसे रन कर रहा है, राइट? स्कॉलरशिप्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरिटोरियस पे होती है। स्कॉलरशिप्स ऐसा नहीं है कि आपने जो 10th में 12th में अंडर ग्रेजुएट में जो करा है सिर्फ उसी के बेसिस पे मिलती है, राइट? देयर आर इंस्टीट्यूशंस जो कि आपकी पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे भी आपको स्कॉलरशिप्स देते हैं, बट देयर आर इंस्टीट्यूट्स जो कि आपका टेस्ट लेते हैं, जो आपका इंटरव्यू लेते हैं, जो आपका ओवरऑल एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज देखते हैं, राइट? उनके बेसिस पे आपको स्कॉलरशिप्स देते हैं। तो पहला, स्कॉलरशिप नॉट ओनली ऑन बेसिस ऑफ मेरिटोरियसनेस बट ऑल्सो इन बेसिस ऑफ डाइवर्सिटी यू ब्रिंग टू द टेबल। यार आप बैडमिंटन प्लेयर हैं क्या? आपने स्टेट लेवल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोई स्पोर्ट्स पे compete करा है क्या? All of these things really play a very crucial role, right? So diversity that you bring to the table, economic strata that you belong to. काफ़ी organizations हैं, not just the institution जिसमें आप admission ले रहे हैं, but उसके बाहर भी there are many foundations, right? Which give you access to these opportunities जो ये foundations देते हैं in terms of scholarships also. और ये different programs, different communities के लिए operate करती है. I'm sure even if you'll ask your parents, right, in whichever town you are, you will always find out one or two established foundations which support you in that scholarship. इसी spirit में Sunstone also provides you scholarship, right? So we have also launched a Bright Mind scholarship. We also have a SAT scholarship. We also have a Defense Personal scholarship. All of these scholarships are aimed at getting meritorious students as well as diverse students to come and form part of that collective group which will eventually form our class. With one very simple agenda in mind, the more diverse your batch is, the more meritorious your batch is, the better learning outcomes you'll be able to deliver to each and every student. So one is scholarships. You can get it from the institute that you belong to or that you wish to join, or you can look it outside as well, right? Second and most important again is availability of credit, I would say, which is either an education loan that you can easily take from any nationalized bank, private bank, or it's easy EMI financing, right? Equal monthly installments में आप अपनी फीस को पे कर सकते हो. What do I mean by that is, अगर आपकी hypothetically आपने अगर BTech प्रोग्राम में एडमिशन लिया, let's say उसकी ओवरऑल फीस 4 लाख रुपीस है, which is 1 lakh every year. So one in first option, what you'll do is you'll take an admission. आप अपने respective institute को बोलोगे, listen, I've taken admission in your college. What I need is a bona fide. A bona fide is a proof that you're a student of that college. और उसमें आपका फी स्ट्रक्चर डिफाइन होता है विच सेज ईयर 1 लाख रुपीज, ईयर 2 1 lakh rupees, and so on and so forth in year 3 and 4. You take that bona fide to the bank and you say, I want a collateral free loan, which means कि देखो मुझे कुछ गिरवी नहीं रखना है, मैं एक एजुकेशन करने जा रहा हूँ, मैं एक डिग्री प्रोग्राम करने जा रहा हूँ, ये फुल टाइम डिग्री प्रोग्राम है, एक रेप्यूटेड कॉलेज है इंस्टीट्यूट में, और मुझे एजुकेशन लोन चाहिए, राइट? दैट्स वन ऑफ द ईजिएस्ट वे टू गो फॉर. आप प्राइवेट बैंक में भी जा सकते हैं, आप नेशनलाइज बैंक में भी जा सकते हैं, दे कैन ईजिली अप्रूव दैट लोन आउट फॉर यू. दैट्स वन. अगर दैट इज नॉट द वे यू वांट टू गो, और अगर आपका लोन वहाँ पे किसी रीजन से अप्रूव नहीं होता है, देन देर आर वेरियस NBFCs, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जो कि आपकी टोटल फीस को मंथली फीस में कन्वर्ट कर देते हैं, विच मीन्स कि फर्स्ट ईयर की आपकी जो 1 लाख रुपीज़ की फीस थी, दैट कैन बी डिवाइडेड इंटू 8,000 रुपीज़ के मंथली इंस्टॉलमेंट्स. So you don't have to pay the entire 1 lakh fees upfront. आपको 1 लाख रुपए पूरे के पूरे फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज पे पे नहीं करना है. आपको उस दिन सिर्फ 8,000 रुपीज़ पे करना है, अगले मंथ फिर 8,000 रुपीज़ पे करना है, उसके अगले मंथ फिर 8,000 रुपीज़ पे करने. ऐसे करते करते आप 12 महीनों में टोटल 1 लाख रुपीज़ पे कर सकते हो. What this helps is
आपको वो 1 लाख रुपए एक साथ इकट्ठे नहीं करने, आपको वो ईजी मंथली आराम से वो पे कर सकते हो. That's one of the foremost thing that you can do. So 2 things we covered. One is scholarships. You should always look out for one. If you really want to know more about Sunstone scholarships, you can always ask your counselors. We do have Bright Mind scholarships for CAT, JEE aspirants. We'll be launching it for 12th board as well in coming days. So one is scholarship. Second is accessibility to credit, which is more to do with the loans that you can take or easy EMI financing that you can do. But let me also give you a thumb rule, right? These are 2 things we discussed. But the thumb rule is accessibility to credit, yeah, affordability is definitely one of the major aspects. But that should be a criteria, but not the decision maker. What do I mean by that? अगर आपको बीटेक की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मान लो किसी ऐसे कॉलेज में जिसमें आपको 2.5 लाख में पूरी एजुकेशन आपकी हो जाती है, राइट? दैट्स रियली ग्रेट, 2.5 लाख फॉर बीटेक. बट वॉट यू हैव टू सी इज ये 2.5 लाख आपका इन्वेस्टमेंट है. जिस कॉलेज में भी आपको इन्वेस्ट कर रहे हो, नॉट जस्ट द मनी बट 4 years ऑफ योर लाइफ, 4 साल जिस भी इंस्टीट्यूट में आपको इन्वेस्ट कर रहे हो, एट द एंड ऑफ 4 years व्हाट इज द आउटकम दैट यू गोना गेट, व्हिच मींस व्हाट इज द एवरेज प्लेसमेंट दैट यू गोना गेट, व्हाट आर द फर्दर करियर अपॉर्चुनिटीज दैट यू विल गेट एक्सेस टू. एक बहुत सिंपल फॉर्मूला है, आप जो फीस देते हो वो है इन्वेस्टमेंट, दैट इज द इन्वेस्टमेंट दैट यू आर मेकिंग. आपको जो CTC मिलता है और एवरेज पैकेज मिलता है, दैट इज द आउटकम दैट यू आर डूइंग. फाइनेंस की जब भी पहली क्लास लोगे ना, दिस इज द फर्स्ट कंसेप्ट विच इज टॉट टू यू, विच इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. आपका इवेंचुअल आउटकम क्या है डिवाइडेड बाय आपका इन्वेस्टमेंट क्या है, दैट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. अगर आपने 2.5 लाख रुपए की फीस इन्वेस्ट करी पर आपका प्लेसमेंट नहीं लगा, दैट इज अ 0 रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. पर वहीं अगर आपने 4 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करी एक बीटेक प्रोग्राम में और आपका 8 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट, 8 लाख रुपए की CTC लगी, दैट्स 100% मोर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देन व्हाट यू हैव डन, राइट? सो अफोर्डेबिलिटी ओनली कैन नॉट बी द डिसीजन मेकिंग क्राइटेरिया इज द थंब रूल. While you should look for affordable education and you should look for quality education and bring affordability in it, but don't compromise on return on investment. That's my only guidance to all of you.